السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کا ہوسٹ رضوان صدیق اور میں ریحان اے آئی ایجوکیشن کی اس زبردست پلیٹ فارم کے لائیو سیشن میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ دوستو، خوش رہنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خوشی صرف ایک احساس نہیں بلکہ اس کے پیچھے پوری سائنس ہے۔ ہماری دماغی کیمسٹری اور روزمرہ کی عادات ہمیں خوش رہنے میں کیسے مدد دے سکتی ہیں؟ آج کے اس لائیو سیشن میں ہم اسی موضوع پر دا سائنس بیہائنڈ ہیپینیس پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں اے آئی چیٹ جی پی ٹی۔ ہم ڈائریکٹ چیٹ جی پی ٹی سے اردو میں سوال جواب کریں گے اور جانیں گے کہ سائنس کی روشنی میں حقیقی خوشی کیسے حاصل کی جائے۔ تو چلیے پہلا سوال ہم پوچھتے ہیں۔ ہیلو چیٹ جی پی ٹی، السلام علیکم۔ Walaikum assalam. How can I help? جی مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سائنس کی نظر میں خوشی، ہیپینیس اصل میں کیا ہے؟ ایک سیکنڈ. اچھا سوال ہے. سائنس کے مطابق خوشی صرف وقتی ہنسی نہیں بلکہ زندگی سے مجموعی طور پر اطمینان کا احساس ہے. اس میں تعلقات، صحت، زندگی کا مقصد، شکر گزاری اور روزمرہ کی وہ سرگرمیاں شامل ہیں جو آپ کو بامقصد محسوس ہوں. سادہ لفظوں میں سائنس کے نزدیک خوشی متوازن اور مطمئن زندگی گزارنے کا نام ہے، نہ کہ صرف مسکرانے کا. اوکے جی، میرا اگلا سوال ہے کہ ہمارے دماغ میں کون سے کیمیکلز خوشی کا احساس پیدا کرتے ہیں؟ ایک سیکنڈ چیک کرتی ہوں. جی، یہ بھی بہت دلچسپ سوال ہے. اہم کیمیکلز میں ڈوپامین ہے جو کامیابی پر خوشی دیتا ہے، سیروٹونن جو سکون اور اطمینان سے جڑا ہے، اینڈورفنز جو ورزش یا ہنسی کے دوران خارج ہوتے ہیں، اور آکسیٹوسن جو محبت اور اعتماد کے لمحات میں بڑھتا ہے. یہ سب مل کر ہمیں خوشگوار اور متوازن محسوس کراتے ہیں. اچھا جی، بہت آپ نے اچھا جواب دیا ہے۔ میرا اگلا سوال ہے، کیا انسان خوش رہنے کی صلاحیت کو ایک مہارت کی طرح سیکھ اور بڑھا سکتا ہے؟ ذرا دیکھتی ہوں. جی بالکل، یہ صلاحیت کافی حد تک سیکھی اور بہتر کی جا سکتی ہے. تحقیق بتاتی ہے کہ مثبت عادتیں جیسے روزانہ شکر گزاری، بہتر نیند، باقاعدہ ورزش، پیارے تعلقات اور ذہنی دباؤ کو صحت مند انداز میں سنبھالنا آہستہ آہستہ خوش رہنے کی صلاحیت کو مضبوط کرتی ہے. البتہ خوشی کا مطلب ہر وقت خوش محسوس کرنا نہیں، بلکہ مشکل جذبات کو متوازن طریقے سے سنبھالتے ہوئے دوبارہ معمول کی طرف لوٹانے کی صلاحیت ہے. آسان لفظوں میں خوشی پوری طرح فطری تو ہوتی ہے، مگر اچھی عادتوں اور مثبت رویوں سے اسے کافی بہتر اور مضبوط بنایا جا سکتا ہے. اوکے جی، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ شکر گزاری اور سائنس کا کیا تعلق ہے؟ روزانہ شکر ادا کرنے سے خوشی میں کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ سوچ کر بتاتی ہوں. بہت اہم سوال ہے. شکر گزاری کی سائنس کہتی ہے کہ جب ہم باقاعدگی سے ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے اور ان پر شکر ادا کرتے ہیں تو ہمارا ذہنی سکون، اطمینان اور امید بڑھتی ہے. شکر گزاری کی عادت منفی سوچ کو کم کر کے دباؤ سے نمٹنے میں بھی مدد دیتی ہے. مثال کے طور پر ہر رات سونے سے پہلے 3 نعمتوں کا سوچنا یا لکھنا وقت کے ساتھ مثبت سوچ اور خوشی کو مضبوط بناتا ہے. سادہ الفاظ میں شکر گزاری دماغ کو زیادہ مثبت زاویے سے سوچنا سکھاتی ہے، جس سے ذہنی سکون، اطمینان اور طویل مدت میں خوشی میں اضافہ ہوتا ہے. اوکے جی، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ ہماری سوچ اور مثبت ذہنیت ہماری دماغی صحت اور خوشی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ چیک کرتی ہوں ذرا. اہم سوال ہے. ہماری سوچ اور مثبت ذہنیت ذہنی صحت اور خوشی پر گہرا اثر ڈالتی ہے. جب ہم مثبت زاویہ نظر رکھتے ہیں، یعنی مشکلات کے ساتھ مواقع بھی دیکھتے ہیں، تو دباؤ بہتر طریقے سے سنبھالتے ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور زندگی سے زیادہ مطمئن محسوس کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ منفی جذبات کو نظر انداز کر دیں، بلکہ یہ کہ حقیقت کو مان کر
तामीरी हल की तरफ बढ़ा जाए। सादा लफ्जों में जैसे सेहतमंद ग़िज़ा जिस्म को मजबूत करती है, वैसे ही मुस्बित और मुतवाज़िन सोच दिमाग को मजबूत बनाती है। ज़हनी सेहत बेहतर होती है और इंसान ज़िंदगी के चैलेंजेस का ज़्यादा एतमाद से सामना कर सकता है। ओके जी, बहुत अच्छी बात की आपने। मेरा आपसे बहुत अगला शुक्रिया। सवाल है, क्या मादी चीज़ें या ज़्यादा पैसा इंसान को दायमी खुशी दे सकते हैं, या साइंस इस बारे में कुछ और कहती है? जरा चेक करती हूँ। ये बहुत अहम सवाल है। साइंस के मुताबिक पैसा या मादी चीजें वक्ती खुशी दे तो सकती है, मगर देर पा खुशी को यकीनी नहीं बनाती। बुनियादी जरूरियात पूरी होने के बाद इजाफी आमदनी से खुशी में मुस्तकिल इजाफा नहीं होता। तहकीक बताती है कि देर पा खुशी ज्यादातर अच्छे ताल्लुकात, सेहत, जिंदगी के मकसद, दूसरों की मदद और शुक्रगुजारी से जुड़ी होती है। अगर पैसा अकेला हो मगर रिश्ते कमजोर हों या मुसलसल दबाव मौजूद हो, तो वो हकीकी खुशी नहीं दे पाता। इसलिए बेहतर यही है कि माली आसूदगी के साथ साथ सेहत, मजबूत ताल्लुकात, बामकसद मसरूफियात और शुक्रगुजारी को भी मामूल का हिस्सा बनाया जाए। खुशी दरअसल मुतवाजिन जिंदगी से आती है, ना कि सिर्फ ज्यादा चीजें जमा करने से। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। मेरा आपसे अगला सवाल है कि दूसरों की मदद करना और सखावत करना हमारे अंदर खुशी के हार्मोन्स को कैसे बढ़ाता है? जरा चेक करती हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। साइंस कहती है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो दिमाग में ऑक्सीटोसिन, डोपामीन और कभी-कभी एंडोर्फिन्स भी बढ़ जाते हैं, जिनसे सुकून, ताल्लुक और खुशी का एहसास पैदा होता है। इसे कभी-कभी हेल्पर्स हाई भी कहा जाता है। मतलब ये कि दूसरों के लिए भलाई करने से ना सिर्फ सामने वाले को फायदा होता है, बल्कि अपना मूड भी बेहतर हो जाता है। लेकिन ये तवाज़ुन का खेल है। हद से ज़्यादा किए बगैर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मदद करे तो ये हमारे जज्बात, ज़हनी कैफियत और मजमूई खुशी पर मुस्बित असर डालता है। सादा लफ्ज़ों में साइंस के मुताबिक सखावत करना दिमाग के खुशी वाले केमिकल्स को मुतहर्रिक कर देती है। ये सिर्फ मुआशरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी मुफीद है। आपने डोपामीन्स की बात की है, ये थोड़ी सी डिटेल में बताएं, ये क्या चीज़ है डोपामीन्स? एक सेकेंड ज़रा। जी, डोपामीन दिमाग का वो केमिकल है जो मोटिवेशन, सीखने, तवज्जो और इनाम के एहसास से जुड़ा हुआ है। जब आप कोई मकसद पूरा करते हैं, नया कुछ सीखते हैं या किसी मसले को हल कर लेते हैं, तो डोपामीन की सरगर्मी बढ़ जाती है, जिससे खुशी और इत्मीनान का एहसास पैदा होता है। ये सिर्फ खुशी का केमिकल नहीं, बल्कि ये भी तरगीब देता है कि हम अपने मकासद की तरफ बढ़ते रहे। सेहतमंद आदतें जैसे वर्जिश, नई महारत सीखना, मुनासिब नींद और छोटे छोटे अहदाफ हासिल करना इस निज़ाम को मुतवाज़िन और मुस्बित रख सकती है। आसान लफ्ज़ों में डोपामीन हमें कामयाबी के बाद अच्छा महसूस कराता है और दोबारा मेहनत करने की रग़बत देता है। मगर खुशी सिर्फ उसी पर मुनहसर नहीं, इसे सेहत, रिश्तों, मकसद और मुस्बित आदतों के साथ मिलकर देखना पड़ता है। तब खुशी ज़्यादा मुतवाज़िन, पायदार और देर तक कायम रहने वाले एहसास में बदल जाती है। शुक्रिया, आपने इसको मज़ीद डिटेल से बताया। मेरा आपसे अगला सवाल है कि मेडिटेशन, पुरस्कून सांस लेना और हाल में जीना खुश रहने में कैसे मदद करता है? देखती हूँ ज़रा। बहुत अच्छा सवाल है। मेडिटेशन, पुरसुकून सांस लेना और हाल में जीना ज़हनी सुकून और खुशी बढ़ाते हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं, तो जिस्म को आराम का इशारा मिलता है और जब हम हाल पर तवज्जो देते हैं, तो माज़ी के बोझ और मुस्तकबिल की बेजा फ़िक्रों से ज़हन आज़ाद होता है, जिससे मुसलसल गैर ज़रूरी फ़िक्रें कम हो जाती है। रेगुलर मेडिटेशन तवज्जो बेहतर बनाने, दबाव कम करने और जज़्बात को सँभालने में मदद देती है। और माइंडफुलनेस यानी हाल में जीना हमें याद दिलाता है कि हर लम्हा पूरी तरह जिया जा सकता है। ये तरीके दिमाग को पुरसुकून रखते हैं, खुशी को गहरा करते हैं और ज़िंदगी से ज़्यादा जुड़े हुए महसूस होने में मदद देते हैं। ये यहाँ पे मेडिटेशन का ज़िक्र हुआ है। मेडिटेशन को नाज़रीन के लिए थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि मेडिटेशन क्या चीज़ है? ठीक है, 1 मिनट। जी, ज़रूर।
नाजरीन के लिए मेडिटेशन एक जहनी मश्क है जिसमें आप अपने जहन को चंद मिनट के लिए पुरसकून करने, अपनी तवज्जो एक जगह रखने और हाल पर मरकूज करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आराम से बैठ जाएं, सांस पर तवज्जो दें और अगर ख्यालात भटके तो नरमी से दोबारा सांस की तरफ वापस आ जाएं। रिसर्च के मुताबिक बाकायदगी से मेडिटेशन करने से दबाव कम हो सकता है, तवज्जो बेहतर हो सकती है और जज्बात को संभालने की सलाहियत मजबूत हो सकती है। मगर ये हर किसी में एक जैसे काम नहीं करता। ये जहनी बीमारी का मुकम्मल इलाज नहीं बल्कि एक मददगार आदत है। जिस तरह जिस्म को मजबूत रखने के लिए वर्जिश करते हैं, वैसे ही जहन को पुरसुकून और मुतवाज़िन रखने के लिए मेडिटेशन की मशक की जाती है। ख़ास तौर पर बाकायदगी से करने पर यह दिमाग को आराम देने और खुशी के एहसास को बढ़ाने में मदद देती है। मगर अगर शदीद ज़हनी दबाव हो तो पेशावर मदद लेना भी ज़रूरी हो सकता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि मजबूत ताल्लुकात, दोस्त और ख़ानदानी रिश्तेदार इंसान को अंदरूनी खुशी देने में क्या किरदार अदा करते हैं? चेक करती हूँ। बहुत अहम सवाल है। मजबूत ताल्लुकात, अच्छे दोस्त और ख़ानदानी कुर्बत खुशी के सबसे अहम ज़राए में शामिल है। तहकीक बताती है कि जिन लोगों के मजबूत मुस्बित ताल्लुकात होते हैं वो ज़्यादा खुश और जहनी तौर पर सेहतमंद रहते हैं। इसकी वजह यह है कि मोहब्बत, एतमाद और ताउन इंसान को तन्हाई से निकालते हैं, दबाव कम करते हैं और ज़िंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला करने में सहारा देते हैं। जब आप अपने खानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो ये मजबूत रिश्ते आपके अंदर इत्मीनान और खुशी का एहसास पैदा करते हैं। सादा अल्फाज में साइंस के मुताबिक हकीकी खुशी सिर्फ दौलत या कामयाबी से नहीं, बल्कि मोहब्बत, एतमाद और एक दूसरे का साथ देने से मिलती है। चैट जीपीटी खुशी की साइंस के बारे में इतनी ज़बरदस्त मालूमात शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। खुशी हुई। अल्लाह हाफिज। तो नाजरीन, ये था हमारा सेशन खुशी और मसरत हासिल करने की साइंस पर। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ तलाश करें, शुक्रगुजार बनें और दूसरों में भी मुस्कुराहटें बाँटें। रेहान एआई एजुकेशन से अपने होस्ट रिजवान सदीक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।